बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये कमिटमेंट की थी कि दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जस्ट ज़रा रिवाइज कर लें कि हमने पहले क्या पढ़ा था। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव classified these carbohydrates as it is classified in the conventional way, that the carbohydrates are among various classes of biomolecules, and they are further classified into further subcategories. We had studied the definition of carbohydrates, that these are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones, which are commonly known as sugars. Moreover, these carbohydrates are synthesized through a process known as photosynthesis. We had also studied classification of carbohydrates in two major categories: simple carbohydrates and complex carbohydrates. Further, detailed categorization of these carbohydrates was discussed as monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. So, in the previous lecture, we did everything to deal with the introduction of monosaccharides. Now, today, we are going to introduce the configuration of monosaccharides. So, let's move towards configuration of monosaccharides or stereochemistry of these carbohydrates. So, in the first aspect, before we are going to discuss the configuration, we must know that how to represent the 3D structures of carbohydrates or monosaccharides in 2D, because we are going to write all these structures in 2 dimensions, but the molecules actually exist in 3 dimensions. So, the basic way is that how to write a structure of a 3 dimensional molecule into a 2 dimensional sheet. So, scientists have introduced various methodologies to represent 3D structures of molecules into 2D. The first methodology which I am going to discuss is wedge and dash projection. Wedge and dash projection. In other words, it is also known as wedge and dotted line projection. इसमें क्या होता है? इसमें मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड वेज की सूरत में, डॉटेड लाइन बॉन्ड की सूरत में और सॉलिड बॉन्ड्स की सूरत में. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड्स in wedge and dotted line projection or wedge and dashed projection. First type is solid bonds, other is solid wedge, and still another is dotted line bond. So, the solid bonds in case of the compounds of carbon, as we are discussing here, these two solid bonds with which W and X groups are linked. So, W, X, and C, these three atoms or these two bonds, they are lying in one plane. So we must consider that in writing wedge and dash projection out of the four bonds of carbon, we have to consider two bonds
lying in the plane of paper. What about other two? Other one may be outward of the paper or maybe towards the viewer, and the still another other one bond is towards inner side or away from the viewer. तो यहाँ पे हमने वेज और डैश प्रोजेक्शन में पढ़ा कि सॉलिड बॉन्ड्स तो प्लेन का हिस्सा है, पेपर की प्लेन का हिस्सा है, लेकिन जो वेज बॉन्ड है, जो यहाँ पे वेज फॉर्म में आपको नज़र भी आ रहा है वाई के साथ लिंकेज, उसकी डायरेक्शन हमारी तरफ है, पेपर से बाहर की तरफ है, और जो डॉटेड लाइन बॉन्ड है उसकी डायरेक्शन हमसे अवे है। और ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाती है, इट इज़ sp3 hybridized and it possess tetrahedral geometry. हर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। तो जब आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि दो बॉन्ड जो हैं दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, अब बाकी दो जो है लाजमी तौर पे उनमें से एक आउटवर्ड द प्लेन होगा और दूसरा इनवर्ड द प्लेन होगा, या दूसरे अल्फाज में एक टूवर्ड्स द व्यूअर देखने वाले की तरफ होगा और दूसरा अवे फ्रॉम द व्यूअर जो देख रहा है उससे दूसरा बॉन्ड दूर होगा। तो यही वो प्रोजेक्शन है जिसकी मदद से हम कार्बोहाइड्रेट्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री डील्स with the three dimensional structures of the molecules. तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेशन हमें अवेलेबल हुई विद द हेल्प ऑफ वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। These are the structures of R-glyceraldehyde and S-lactic acid according to wedge and dash projection. So, in R-glyceraldehyde, the hydroxyl group is directed outward the plane, hydrogen atom is directed inward the plane, while the other two bonds are within the plane. Same is the case with the lactic acid. The bond with methyl and carboxylic acid, these bonds are within the plane. Hydroxyl group is directed outward the plane and hydrogen atom is directed inward the plane. There is another method, another methodology to represent three-dimensional molecules. Before going to that methodology, we should conclude the wedge and dash projection. Every three-dimensional molecule, especially in case of carbon compounds, it is represented in such a way that the two solid bonds, they are the part of the plane or the part of the plane of paper, while out of the other two bonds the solid wedge is directed outward and dashed wedge is directed inward. So in this way we could represent every compound of carbon by using this projection. Now the other model is Fischer projection. In Fischer projection, tetrahedral carbon is represented by two crossed lines. Horizontal lines represent the bond coming out of the plane. Vertical lines represent the bond going into the plane. अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है फिशर प्रोजेक्शन में, उसमें सेंट्रल कार्बन के चारों बॉन्ड्स इस तरह से ड्रा किए जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करती हैं दैट इज़ कायरल कार्बन। उस कार्बन को, सेंट्रल कार्बन को जो है क्रॉस पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं, दैट इज़ सेंट्रल कार्बन।
अब जो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स हैं उनको इस तरह से ड्रा किया गया कि दी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स दे आर कंसिडर्ड टू बी directed outward the plane while the vertical bonds are considered to be directed inward the plane. दूसरे अल्फाज में सेंट्रल कार्बन वो पेज का हिस्सा है, प्लेन का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो दोनों बॉन्ड इनवर्ड डायरेक्शन में हैं, अवे डायरेक्शन में हैं, व्यूअर से अवे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं दे आर आउटवर्ड द प्लेन और इन अदर वर्ड्स दे आर टूवर्ड्स द व्यूअर। ये समझना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इन बातों को डिस्कस किए बगैर हम स्टीरियो केमिस्ट्री में मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ आर लैक्टिक एसिड। Similarly, the next structure as well, it is the also of R lactic acid and the next one is of S lactic acid. अगर आप पहली दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो दोनों सेम हैं, लेकिन जस्ट मॉलिक्यूल को रोटेट किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके हाथ में मौजूद पेन, आप उसको जितनी मर्जी रोटेशंस दे दें उसकी कन्फिगरेशन चेंज नहीं होगी। हाँ, आप पेन का कैप उतार के उसके बैक साइड पे लगा दें, अब है वही पेन लेकिन उसकी कन्फिगरेशन चेंज हो चुकी है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को आप जितनी मर्जी रोटेशंस दे दें उसकी कन्फिगरेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन जब भी आप एक बांड तोड़ के उसकी जगह पे दूसरा बांड बनाएंगे उसकी कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी। तो पहली दो स्ट्रक्चर्स जो हैं दोनों ही लैक्टिक एसिड की आर कन्फिगरेशन वाली स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम हैं, जस्ट मॉलिक्यूल को रोटेट किया गया। और जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑफ एस लैक्टिक एसिड। इनमें आपको जो बात समझाने वाली है वो सिर्फ ये है कि द बॉन्ड्स विच आर ऑन हॉरिजॉन्टल लाइंस दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द व्यूअर and the bonds which are present on the vertical line they are directed inward the wall. अब हमें समझनी है DL कन्फिगरेशन। DL कन्फिगरेशन क्या है? DL कन्फिगरेशन को समझने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स को स्पेशली मोनोसैकेराइड्स को ये बात नोट रखें कि DL कन्फिगरेशन इज अप्लाइड टू ओनली शुगर। आप इनको बाकी कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। यू कैन ओनली अप्लाई दिस कन्फिगरेशन मॉडल टू ओनली शुगर्स और ओनली कार्बोहाइड्रेट्स। यू आर गोइंग टू राइट फर्स्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन फिशर प्रोजेक्शन, और मोनोसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर्स को फिशर प्रोजेक्शन में लिखने का एक कन्वेंशनल मेथड है। जब भी आपने DL कन्फिगरेशन फाइंड आउट करनी है उसके लिए स्ट्रक्चर को लिखना है, यू विल हैव टू फॉलो द कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग द स्ट्रक्चर। और कन्वेंशनल वे क्या है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन सच अ वे दैट द कार्बोनिल कार्बन एटम ऑफ फॉर्माइल ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। अगर वो एल्डोज है तो फॉर्माइल ग्रुप, अगर मोनोसैकेराइड बिलोंग करता है कीटोज फैमिली से तो कीटोनिक ग्रुप, they must be lying towards the top of the structure। और जो CH2OH वाला एंड है that must be drawn in such a way that it should be lying on the bottom of the structure। फॉर्मल ग्रुप टॉप पे रखना है और चेन का जो दूसरा सिरा है जिस पे CH2OH है उसको बॉटम पे होना चाहिए। तो ये है कन्वेंशनल वे लिखने का। जैसे ये स्ट्रक्चर है डी ग्लिसरल्डिहाइड की जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे, यूं ही हमने उसका मिरर इमेज लिया या हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर दी, अब ये स्ट्रक्चर बन गई एल ग्लिसरल्डिहाइड की। तो नोट करें डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड बोथ आर mirror image of each other and that is why these are enantiomers। खैर
इनांशोमर्स की डिस्कशन तो बाद में होगी, अभी हम जस्ट आते हैं डी एल कन्वेंशन पे। तो कीप इन माइंड दैट इन डी एल कन्वेंशन ग्लिसरैल्डिहाइड इज कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड। जो भी स्ट्रक्चर आपने असाइन करनी है दैट मस्ट बी असाइंड आफ्टर कंपैरिजन विद द ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर वो डी ग्लिसरैल्डिहाइड से मैच कर रही है तब वो शुगर कहलाएगी डी शुगर, और अगर उसकी स्ट्रक्चर मैच कर रही है एल ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ तब वो होगी एल शुगर। मसलन आपने करना क्या है, you should compare the structure or configuration of lowest chiral center with glyceraldehyde as reference compound. For example, this is the structure of ribose. इसका lowest chiral center ये है CH2OH जिस कार्बन से linked है, that is also a chiral carbon. So this is the lowest chiral center of D ribose of ribose. अब आप ये lowest chiral center की configuration देखिए, क्या ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड के कायरल सेंटर से मैच कर रही है या एल ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ? ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लाइंग ऑन राइट साइड एंड दैट इज व्हाई इट इज रिजेंबलिंग टू डी ग्लिसरैल्डिहाइड, एंड ऑन दिस बेसिस दिस स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज इज नोन एज डी राइबोज। मुझे उम्मीद है आपने फॉलो किया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डी ग्लूकोज की है। लोएस्ट कायरल सेंटर resembles with D-glyceraldehyde, so it is D-glucose, and the next structure is of D-fructose. So fructose is also assigned D configuration as it is going lowest chiral center is resembling with D-glyceraldehyde. यहाँ पे एक खास बात है जो नोट करने वाली है और अक्सर लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। वो समझते हैं कि डी और एल का डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी के साथ कोई ताल्लुक है। आप जानते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में डेक्सो रोटेटरी आर द आइसोमर्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which rotate the plane of polarized light in clockwise direction, and levorotatory are the isomers of optically active compounds that rotate the plane of polarized light in anti-clockwise direction. तो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल का डेक्सो और लिवो के साथ कोई लेना देना नहीं है। D and L configuration is only assigned to monosaccharides to show their relationship with